Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles हैं, first is regarding Chief Election Commissioner and Election Commissioners, and because Shri Rajiv Kumar, the present Chief Election Commissioner, will retire very soon. So this is the news. The laws, there have been some laws as Chief Election Commissioner and other commissioner bill of 2023, this has been challenged. Okay, so the news is regarding that only, that it has been challenged, and so we have to understand about it. Anup Barnwal case is very prominent here. Anup Barnwal versus Union of India. This is very important case that is associated with Chief Election Commissioner. So this is the first news. Second news is regarding the Kane Betwa link. One editorial has come regarding that. So हमने वैसे भी देखा हुआ है, फिर से एक बार देखेंगे. And last news is regarding Indo-Maldivian relationship. All right. So तीनों news आज के important है. Let us analyze one by one. First is regarding Supreme Court to take up pleas challenging Chief Economic Commissioner and Economic Commissioner appointment law in February. So this is the news. जो आपका जो न्यूज़ है ये इसके रिगार्डिंग आया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के जो है अपॉइंटमेंट का जो कानून है उसको पास किया गया था, वो बिल को जो है वो पास किया गया था, उसके खिलाफ जो है कुछ प्लीज जो है वो दर्ज की गई है. लेट अस लुक एट द न्यूज़. द न्यूज़ सेज Chief Election Commissioner Rajiv Kumar's retirement in February brought back into focus before the Supreme Court on Wednesday the need to fast-track a decision on the legality of new law dealing with appointment of election commissioners, which gives the union government a dominant role. Okay, so the role of the union government has become very dominant, and because he would retire, Shri Rajiv Kumar Singh ji, the present Chief Election Commissioner, would retire, it has made the situation very demanding कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ कानून जो है कार्रवाई वो करे. जस्टिस सूर्यकांत हेडिंग अ 3 judge bench of Justice Dipankar Datta and K.V. Vishwanath, Justice Dipankar Datta and Justice K.V. Vishwanathan highlighted the test regarding the validity of Chief Election Commissioners and other election commissioner appointment, condition of service and term of office Act of 2023. ये एक्ट जो है ये 2023 में लाया गया था. would hinge on whether the court's authority to pronounce binding decision under Article 141 of the Constitution could be circumvented or diluted by a law. यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता था कि आपके जो है 3 मेंबर्स का होना, यहाँ पर प्रेजेंस होना वेरी इंपॉर्टेंट था. ठीक है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था जब हम लोग ने इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में डिस्कस किया था. इट वाज अ वेरी हाई पावर कमिटी, या एक ग्रुप जो था वो बहुत हाई पावर था, जिसमें 3 लोगों का डिसीजन से, मत से जो है एक जो हमारे किसी को भी अपॉइंट किया जाता है. सिमिलरली अर्लियर व्हाट हैपेंड इज द सुप्रीम कोर्ट सेड, the Supreme Court said, if you don't have any law regarding appointment and of chief election commissioners, then what we can do is, जब तक आप नियम को पास नहीं करते उससे पहले तक what we can do is, we can have a member of 3 person. We can have a body of 3 person, which would include Prime Minister, which would include Leader of Opposition, and which would include Chief Justice of India. These 3 people would be in the group, and then they would decide one name. Let's say one person has been decided, and they would further recommend this name to President of India, and President of India would appoint अल्टीमेटली. ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या हुआ, नियम जो है इस समय तक ऐसे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या किया, 2023 में ये कानून को लाया गया, ये अधिनियम को लाया गया. अधिनियम का नाम क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट ऑफ 2023. इन दिस अधिनियम व्हाट दे सेड इज, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम करेंगे कि आपका ये बॉडी सेम रहेगा, बस यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के वी वुड एड वन यूनियन कैबिनेट minister. So this kind of circumvented or kind of diluted the law, and यहाँ पर जो जुडिशरी को kind of एक आघात भी पहुँचा है इसका नियम के कारण. इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जो है इसीलिए एक डिसीजन जो है वो पेंडिंग है. द पिटिशंस इन द क्वेश्चन रेज द पिवटल लीगल क्वेश्चन वेदर पार्लियामेंट possess the authority to promulgate a gazette notification or ordinance to nullify the amendment of the constitution bench judgment. So यहाँ पर वही है कि आपने जो constitution bench का judgment है कि आपने उसको nullify कर दिया, kind of एक nullify ही हुआ क्योंकि आपने directly chief justice of India को remove करके now you have placed one union cabinet minister. So यहाँ पर यही question जो है raise किया गया था. The petitions have primarily challenges the validity of
of Section 7(1) of the statute. The 7(1) mandates that the President will appoint the Chief Election Commissioner and Election Commissioners on the recommendation of Selection Committee. यहाँ पर जो मैंने बताया आपको Selection Committee में कौन कौन रहेंगे, कमिटी में कौन कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा के आपके लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप 2:1 का मेजोरिटी हो रहा है, इवन इफ देयर इज लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन बट ही इज आउटनंबर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसकी वजह से एक दिक्कत है. The judgment had directed the Chief Election Commissioners and the Election Commissioners to be appointed by the President on advice of tendered by a selection committee of Prime Minister, Leader of Opposition एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. पहले ये था, मैंने जो आपको समझाया सेम बात ही यहाँ लिखे हुए. पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, पर अब उनको हटा के देयर इज़ वन मेंबर जो कि यूनियन कैबिनेट से रहेंगे. The Constitution Bench had explained that committee of diverse head was necessary to protect the fierce independence and neutrality and honesty of the institution of Election Commission and government monopoly and exclusive control over appointments of highest poll body. ठीक है, ये जो डिसीजन इसीलिए लिया गया था और ये इंपॉर्टेंट भी इसीलिए है. Why? Because यहाँ पर डाइवर्सिटी है. यू वुड सी कि लोकसभा के लीडर भी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी है, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, एंड देन वी हैव लीडर ऑफ अपोजिशन ऑल्सो, एंड वी हैव मेंबर फ्रॉम जुडिशरी ऑल्सो. सो ये डाइवर्सिफिकेशन को नलीफाई करने की यहाँ पे कोशिश की गई है. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारा गवर्नमेंट का मोनोपोली भी हो जाएगा. इफ़ समवन और समबडी यहाँ पर जो है, अगर वो यहाँ पर इलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट क्यों चाहेगा जो उनका फेवरेबल वो कंटेंडर हो, वही इतना, इट इज़ अ वेरी बिग बॉडी. ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो बॉडी है, इट इज़ इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी बिग बॉडी. तो यहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो मोनोपोली है वो बहुत ज़्यादा बरकरार होगा. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैड एक्सप्लेन दैट कमिटी ऑफ डाइवर्स हेड वॉज नेसेसरी. यहाँ पर तो हमने समझ लिया. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया. इंडिया का जितना यूनियन और स्टेट इलेक्शन का प्रोसेस है वो कौन देखते हैं, वो ओवरसी करते हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 25th of January in 1950, सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे. 25th of January 1950 को ये जो पूरा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका गठन किया गया था. ठीक है, 1950 को, और 1951-52 को पहला जनरल इलेक्शन हमारे इस बॉडी ने कंडक्ट करवाया था. द देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज श्री सुकुमार सेन. Shri Sukumar Sen were the first Chief Election Commissioner of Independent India. The President appoints Chief Election Commissioners and other Election Commissioners, जो कि इस एक्ट के द्वारा बनाया गया है. अगेन रिकॉल करिए कौन कौन होंगे इसमें. प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और इसमें आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एक होंगे. ठीक है, दे हैव फिक्स टेन्योर ऑफ 6 years अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर. 6 साल का उनका टाइम पीरियड रहेगा या 65 years तक का उनका कार्यकाल रहेगा. जो भी अर्लियर होगा उसको हम एज वो उनका जो डेडलाइन है उसको डिफाइन कर देते हैं. द सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड वो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स वुड बी इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज. एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जैसा सैलरी का कंडीशन होता है और सर्विस होता है, सिमिलर जो है आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का भी देखने को मिलेगा. रिमूवल कैसा है, पहले तो वो खुद भी रिज़ाइन दे सकते हैं. एनी टाइम दे कैन रिज़ाइन और कैन बी रिमूव्ड आफ्टर देयर एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म. The chief election commissioners can be removed from the office only through a process of removal similar to Supreme Court judge by Parliament, while election commissioners can be removed on the recommendation of chief election commissioners. यहाँ पे देखिए रिमूवल का प्रोसेस भी थोड़ा सा काइंड ऑफ डिंजी है. पहला देखिए कि जो रिमूवल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो जिससे सुप्रीम कोर्ट का प्रूफ मिस बिहेवियर इन कैपेसिटी, अगर उन स्टैंडर्ड्स में देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे हम एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं वैसा ही रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का होगा. पर इलेक्शन कमिश्नर्स जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आप जो है उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कर सकते हैं. ये कंट्रोवर्शियल भी था बिकॉज बिफोर द अपकमिंग इलेक्शंस, जो मतलब बिफोर द इलेक्शन एंडेड, इलेक्शन के आने से पहले ही दो इलेक्शन कमिश्नर्स को निकाल दिया गया था एंड दे हैड टेकन द रिजाइन. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्शन कमीशन एज अ बॉडी, हर साल इसमें क्वेश्चन
आने का वेरी वेरी हाई चांसेस. सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड अबाउट द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैज़ बीन ब्रॉट बाय द यूनियन गवर्नमेंट. सो ये आपको पता होना होगा. अनूप बर्णवाल केस के बारे में, जिसके बारे में मैं बता रही थी, यू मस्ट रीड अबाउट इट. हमने यहाँ पे बेसिक्स ही समझे अभी फिलहाल तक. सो यू मस्ट रीड इट टू द एडवांस लेवल एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड द टॉपिक्स वेरी डिलीजेंटली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. रिवर लिंक इंटरलिंकिंग द फाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर. यहाँ पर केन बेतवा लिंक 45,000 करोड़ का जितना बड़ा एक कॉर्पस के साथ केन और बेतवा नदी को जोड़ने की यहाँ पे बात की गई थी. ठीक है, तो केन बेतवा लिंक जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो हमारा जो कुछ रीजन है, जैसे मालवा में बहुत सारे रीजन्स हैं. मालवा जो रीजन होगा, आपने सुना होगा कि मालवा रीजन में बहुत सारे रीजन, स्पेशली बुंदेलखंड रीजन में क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. तो ये रिवर को हम लिंक करके जो वाटर स्केर्स रीजन है वहाँ तक हम पानी पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे. बुंदेलखंड रीजन्स जो है ना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स को ये मिलके बनाता है. ठीक है, द प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम लोकेटेड विद इन द पन्ना टाइगर रिजर्व, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इट्स सबमर्जेंस. ठीक है, तो ये जो डैम है ये क्या करेगा, पन्ना टाइगर रिजर्व के पास से क्योंकि जा रहा है, और पन्ना टाइगर रिजर्व ये बहुत ही बड़ा एक एरिया है जहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ टाइगर्स जो है यहाँ पे रहते हैं. तो उसमें वहाँ पर डैम बनाने के कारण क्या होगा कि फ्लडिंग जो है, नेचुरल बात है कि आप दो नदी को एक साथ लाके जोड़ेंगे तो फ्लडिंग हो गए. तो फ्लडिंग के कारण बहुत सारा एरिया ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व इट वुड वॉश अवे. ठीक है, अपॉन कंप्लीशन of the project will link the supposed water surplus Ken with Betwa in drought stricken region of Bundelkhand, an area that had 58% forest cover in 1938. तो बुंदेलखंड के उन स्कैर्स रीजन में जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर ये पानी पहुँचाने की काम जो है ये करेगा केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट. केन नदी में पानी बहुत है, तो वो और बेतवा मिलके बुंदेलखंड वाले जो रीजन है वहाँ पर ये पानी पहुँचाने का काम करेंगे. और ये एरिया ऐसा नहीं है कि पहले से ही ऐसा सूखा है, स्कैर्स है, नहीं. 1938 के समय यहाँ पे 53% तक का फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पर था. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर बेसिन ट्रांसफर वॉज प्रपोज 130 years अगो बाय सर आर्थर कॉटन, who designed irrigation dams in गोदावरी, कृष्णा रिवर वैलीज. ठीक है, तो उनका जो ये आइडिया था 130 साल पहले 1930s के आसपास ही जो है उनके पास ये आइडिया आ गया था सर आर्थर कॉटन के पास कि हमें क्या करना चाहिए, दो नदियों को लिंक करना चाहिए. जब उन्होंने गोदावरी पे, कृष्णा नदी पे वैलीज पे डैम्स बनाए थे, तभी उनको ये आइडिया आ गया था. M. Visvesvaraya, an early icon among the Indian engineers, further refined this idea. K.L. Rao and Captain Dinshaw J. Dastoor subsequently expanded the scope of this concept in 1970s and 80s. तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आइडियाज़ जो था उसको अमेलगमेट करके यहाँ पर अब जो है इसको हम सच्ची में 45,000 कॉर्पस के साथ वी विल स्टार्ट लिंकिंग केन एंड बेतवा रिवर. इनिशियली द टर्म द नेशनल वाटर ग्रिड, ठीक है, इनिशियली टर्म द नेशनल वाटर ग्रिड, दिस कॉन्सेप्ट re-emerged as river interlinking project from Ministry of Water Resources to transfer surplus water from the Ganga and the Brahmaputra to water deficient regions in the central and southern India. तो यहाँ पर क्या है कि जो नेशनल वाटर ग्रिड है, ठीक है, उसमें हम क्या चाह रहे थे कि हम नदियों को इंटरलिंक करें ताकि जहाँ पर भी, जैसे ब्रह्मपुत्र इट ऑफन फ्लड्स, तो मानस तीस्ता नदी को जोड़ के हम जो सूखे एरिया से वहाँ पर पानी पहुँचाए, गंगा मैया के आसपास कुछ नदियों को जोड़ के हम वाटर स्केर्स रीजन में पानी को पहुँचाए. फॉलोइंग दिस नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी was established in 1980 to conduct surveys and investigations to prepare feasibility reports for links under the national perspective plan. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसको बनाया गया था 1982 में, ताकि वो समझे, स्टडी करे आसपास के रीजन्स को और समझे कि क्या ये प्लान जो है ये क्या ये फीजिबल रहेगा या नहीं. ठीक है, यहाँ पर क्या है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने, जो अथॉरिटी एजेंसी है, उन्होंने 30 लिंकेजेस को फीजिबल बताया कि 30 लिंकेजेस जो है हम उसको कर सकते हैं. ठीक है, और 14 हिमालयन रीजन्स और 16 पेनिनसुलर रीजन में हम ये लिंकेजेस को प्रोवाइड करवाएंगे. उसमें जैसे मानस तीस्ता नदी को जोड़ना हो, ठीक है, इसमें केन बेतवा नदी को जोड़ना हो, तो बहुत सारी ऐसे, सतलुज यमुना को जोड़ना हो, तो ये बहुत सारे ऐसे जोड़ने के काम जो है वो यहाँ पर कर रहे थे. दीज लिंक्स आर एंटिसिपेटेड टू एलिविएट द इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड एंड ड्राउट्स
बूस्ट इनकम ऑफ रूरल एरियाज एंड एड्रेस वाटर डिस्ट्रेस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फ्लड जो है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, इकोनॉमिक बूस्ट होगा, वाटर डिस्ट्रेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, करंटली एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 5.5 लाख करोड़ डज नॉट इंक्लूड दी सोशल, इन्वायरमेंटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ये कोई सस्ता काम तो नहीं है। दो नदी को, नदी इज समथिंग विच इज नेचुरल, ओके। आप दो नदी को चेंज करके, उनका पोजीशन चेंज करके इंटरलिंकिंग करेंगे तो इट हैज़ अ वेरी बिग कॉस्ट। और वो बिग कॉस्ट कितना है, 5.5 लाख करोड़, एक्सक्लूडिंग द सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज कि मतलब मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे लोगों को, ठीक है। सोशल कॉस्ट हम ऐसे ही समझते हैं कि अगर इफ़ आई एम डूइंग समथिंग मेरिशियस, ठीक है, अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ उससे मेरे आसपास का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम नॉट थ्रोइंग गार्बेज ऑन दी रोड, या फिर गार्बेज जो है मैं उसको अच्छे से डिस्पोज कर रही हूँ, उससे दूसरों को क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने उसको बाहर नहीं फेंका तो इट वोंट गो टू द ड्रेन एंड इट वोंट कॉज द हैवॉक दैट इट यूजुअली कॉजेज, एंड एस्थेटिकली इट विल बी वेरी प्लीजिंग। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल कॉस्ट से एसोसिएटेड है। सोशल कॉस्ट से मैं क्या करूँगी, उससे आपको क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन स्मोकिंग अ सिगरेट, इससे क्या होगा, सोशल कॉस्ट जो है वो मेरा इंक्रीज होगा। वाई? बिकॉज समबडी इज स्मोकिंग एंड आई एम पैसिवली इनहेलिंग दैट एयर, राइट। तो उसके कारण क्या होगा, इट इज़ सेकेंडरी स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग है, तो ये मेरे लिए हार्मफुल है। कुछ सोशल कॉस्ट जो है वो कुछ अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं, ठीक है। सोशल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट है कि मतलब डैम है तो उसका मैनेजमेंट करना। फिर क्या है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट तो हम ऑब्वियसली समझ ही पा रहे हैं, ठीक है। The eco services of the free flowing rivers including flushing of silt from the river bed to the coastal waters to form deltas, flood। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नदी का काम क्या है कि जो सिल्ट है, जो मिट्टी है, उसको लेके जाके वो रिवर बेड पे, जो माउथ ऑफ रिवर है वहाँ पे ले जाती है। Flood water is not to be rationalized as surplus, it needs to be seen as carrier of minerals for land fertility, groundwater recharge and sustenance of biodiversity, which finally helps in livelihood of many marginalized people। तो हम क्या सोचते हैं कि फ्लड आने से it is very bad, but नहीं, एक्चुअली में it हैज़ सम पॉजिटिविटीज़ ऑल्सो, लाइक ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना हो, ठीक है, अपने साथ वो बहुत सारे मिनरल्स को भी लेकर आता है, बहुत सारी मिट्टी को भी अपने साथ लेकर आता है, जो अल्टीमेटली इन द लॉन्गर रन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इसी नेशनल ग्रिड में, ये जो पूरा पर्सपेक्टिव प्लान है हमारा, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है, उसका ये पहला प्रोजेक्ट जो है हम ले रहे हैं, ठीक है। 14 में से दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी आर टेकिंग अप। इट एम्स टू ट्रांसफर द सरप्लस water from Ken in Madhya Pradesh to the Betwa in Uttar Pradesh, both of which are the tributaries of Yamuna। यमुना की दोनों ट्रिब्यूटरीज है, और यहाँ पर क्या है, केन नदी से हम बेतवा नदी तक लेके जाएंगे और बुंदेलखंड जो रीजन है वहाँ पर पानी पहुँचाएंगे, ठीक है। सो ये आपको ये होपफुली ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। आपका काम रहेगा, आज का आपका होमवर्क है कि आप ज्योग्राफी में जब आप रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आज आपका काम रहेगा कि आपको लोकेट करना है केन एंड बेतवा रिवर को आपको लोकेट करना है, ठीक है। ये दोनों मैंने पहले बता दूं आपको, यमुना मैया की ये जो है ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर की, एंड यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज होने के कारण आपको पूरा यमुना रिवर सिस्टम जो है उसको समझना होगा। इसमें बहुत सारी रिवर्स आके मिलती है, बहुत सारी रिवर्स लाइक के चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, ये सारी तो रिवर्स आ रही है। और चंबल नदी में और 3 नदी, शिप्रा नदी आ रही है एक, ठीक है, तोन्स नदी है, बहुत सारी यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। तोन्स है ट्रिब्यूटरी, शिप्रा है, शिप्रा चंबल नदी की ट्रिब्यूटरीज है। चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है वो आपको पढ़ना होगा। तो आज आप ये काम करिएगा। एंड इफ़ यू रिमेंबर 2024 में देयर वाज अ क्वेश्चन इन अरेंजिंग द रिवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये गंगा रिवर सिस्टम में 4 रिवर्स थी, उनको वेस्ट टू ईस्ट में सीक्वेंस करना था। सो यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंस आपको समझना होगा कि रिवर्स पे क्वेश्चन आ रहा है, और केन बेतवा लिंक पे ज़रूर क्वेश्चन आई थिंक पूछा जाएगा, बिकॉज इट इज़ going to be a very big news and it is a very big news। so केन बेतवा लिंक पे एक सवाल ज़रूर आएगा। so make sure you are preparing it well beforehand। मैं क्वेश्चन आपको बता भी सकूंगी कि क्या जो है वो पूछा जाएगा, क्योंकि इतना रिकरिंग है, इसका पूछे जाने का चांसेस वेरी वेरी हाई, ठीक है। लास्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। इंडिया रेडी टू सपोर्ट मालदीव्स इन एनहांसिंग इट्स डिफेंस प्रिपेयरनेस सेज राजनाथ सिंह जी। रक्षा मंत्री जो है वो मिले हैं यहाँ पर डिफेंस मालदीवियन डिफेंस मिनिस्टर से।
उनका नाम है मोहम्मद घसान मामून, ठीक है। मोहम्मद घसान मामून इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स एंड हमारे यहाँ से श्री राजनाथ सिंह जो है वो मिले, ठीक है। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड स्टोर्स टू दी मालदीव्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मालदीवियन गवर्नमेंट, द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड। तो हमने कुछ जो है स्टोर्स जो है वो हमने हैंड ओवर किया है मालदीव्स को, क्योंकि मालदीव्स ने हमसे ऐसा रिक्वेस्ट जो है वो उन्होंने हमसे किया था, ठीक है। And New Delhi has also reaffirmed its readiness to support Male in capability enhancement for defense preparedness as per national priorities, ठीक है। तो हम भी जो है हमने भी ये बोला कि we are ready to support Male in any ways shape or form possible। so हमने अपना जो पोजीशन है, अपना स्टांस ऑफ प्रो मालदीवन पोजीशन जो है हमने कभी नहीं छोड़ा, एंड इस समय भी हम उनका हेल्प करने के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली तैयार हैं, ठीक है। दिस वॉज कन्वेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ड्यूरिंग द टॉक्स विद हिज विजिटिंग मालदीवियन काउंटर पार्ट मोहम्मद घसन मामून, ठीक है। तो उन्होंने ये बात उनको कहा कि कि वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प माले, ठीक है। मालदीव्स को हेल्प करने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी, बी इट ऑन मिलिट्री लेवल पे तो हम बिल्कुल ही प्रिपेयर करवाते हैं उनको मालदीवियन डिफेंस नेशनल डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। ये जो है मालदीव्स का जो है डिफेंस फोर्सेस है, उनका ट्रेनिंग भी इंडिया करवाता है, ठीक है। तो हम जो है बहुत ज़्यादा उनके सपोर्ट में और उनके हेल्प करने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी। रक्षा मंत्री रीआर्म्ड इंडियाज़ रेडीनेस to support Maldives in capability enhancement for defense preparedness, including provisioning of defense platforms assets to augment its capacities as per national priorities and line with in New Delhi's neighborhood first policy and the vision of सागर, ठीक है। सागर का जो विजन है उसके तहत neighborhood first policy के तहत we are always ready to help Maldives, ठीक है। सागर और हमारा जो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, दोनों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पॉलिसीज़ हैं। ड्यूरिंग द टॉक्स द टू मिनिस्टर्स कंप्रीहेंसिवली रिव्यूड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायलैटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। बहुत सारे जो है उन्होंने एस्पेक्ट्स देखे बायलैटरल कोऑपरेशन के, डिफेंस कोऑपरेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को उन्होंने डिस्कस किया एंड ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारा रिव्यू भी किया। दे ऑल्सो रीजर्टेड द फर्म कमिटमेंट टू वर्क क्लोजली रियलाइजिंग द जॉइंट विजन फॉर इंडिया मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। हमारे पास मालदीव्स के साथ हमारे बहुत ही ज़्यादा अभी बेटर हो रहे हैं फिलहाल तो रिलेशंस, और हमारे रिलेशंस में हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी का पार्टनरशिप है, ठीक है। हमारा मालदीव्स के साथ इकोनॉमिक और डिफेंस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा जो है हमारा एंगेजमेंट होता है मालदीव्स के साथ। एंड यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट विजिट आफ्टर मोहम्मद मुर्जू की गवर्नमेंट के बाद, दिस इज़ द फर्स्ट विजिट ऑफ योर डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम मालदीव्स, ठीक है। सोर्सेज सेड दैट दे डिस्कस इकाता हार्बर, ठीक है। इकाता हार्बर प्रोजेक्ट जो है ये आपके मालदीव्स में है फॉर MNDF। MNDF इज मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस को के जो डिफेंस फोर्सेस के जो कोस्ट गार्ड है वहाँ पर क्या है कि एकता जो है हार्बर प्रोजेक्ट है, दिस इज़ अ हार्बर प्रोजेक्ट नियर द आइलैंड, और वहाँ पर जो है ये इंडिया ने जो है इसको शुरू किया है। इंडिया हैज़ स्टार्टेड दिस एकता हार्बर प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। कोस्टल गार्ड्स को ट्रेनिंग हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस को ट्रेनिंग हो, यहाँ पर वहाँ पर रहना हो, तो ये सारी चीज़ में हम लोगों ने ये जो एकता जो हार्बर प्रोजेक्ट है उसका हम लोगों ने फाउंडेशन स्टोन भी जो है ले किया था, ठीक है। Foundation stone of Ekta Harbour project was laid by Mr. Singh and then Maldivian counterpart Maria Didi, ठीक है, ड्यूरिंग एन ऑफिशियल विजिट इन May 2023। May 2023 को हमने ये स्टोन जो फाउंडिंग स्टोन है इसको हमने ले डाउन किया था। द डेवलपमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड हार्बर एंड रिपेयर फैसिलिटी एट सिफावारू इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रांट इन प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। सिफावारू पे हमने क्या था, हार्बर एंड रिपेयर फैसिलिटी। अगर कोई भी बिकॉज ये क्या है, मालदीव्स इज कंसिडर्ड एज द हाईवे ऑफ इंडियन ओशन रीजन, तो बहुत सारी शिप्स आके यहाँ पर डॉक करती है, दे नीड रिपेयर, दे नीड सम असिस्टेंस, तो यहाँ पर मालदीव्स उसी पे कैश इन करने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमने सिफावारू पे इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है हमने किया था, जहाँ पर हम एक हार्बर को बना रहे हैं जो कि इंडिया का बिगेस्ट ग्रांटी नेम प्रोजेक्ट था, ठीक है। सिफावारू पे वी हैव एकता हार्बर प्रोजेक्ट ऑल्सो विद मालदीव्स। ही ऑल्सो अकॉर्डेड ए ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। एक ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया गया था, ठीक है।
तो ये मालदीव्स के साथ हमारे अभी फ़िलहाल के रिलेशनशिप है, बट हम लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली समझना होगा, ठीक है। पहला जो है यहाँ पर आपको न्यूज़ में भी देखने को मिला होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो हम पहले हम उसी के बारे में समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है। द मालदीवियन प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर हेल्ड एक्सटेंसिव कंसल्टेशन फॉर डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड मैरीटाइम इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हमारे उनके साथ बहुत ज़्यादा रिगरस जो है रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वी वांट टू कोलैबोरेट, बोथ दी कंट्रीज वांट टू कोलैबोरेट। सेकंड इज फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 400 मिलियन जो है हमने दिया है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है हमारे 30 बिलियन का। सो बहुत सारा जो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं आपके मालदीव्स को, ठीक है। टूरिज्म है, आपको पता ही होगा जैसे ही इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप पुअर हुए तो टूरिज्म जो है उनका बिल्कुल क्रैश डाउन कर गया, एंड टूरिज्म पे ही ये निर्भर रहते हैं। तो टूरिज्म को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। इंडियन टूरिस्ट जो है वो अब बहुत कम जाते हैं। आई डोंट सी एनीबडी गोइंग टू मालदीव्स, ओके। पहले बहुत ज़्यादा मालदीव्स जो है वो लोग जाया करते थे। फिर क्या है, एग्रीमेंट्स है इंडिया मालदीव्स का, सेवरल इनिशिएटिव्स वी हैव लाइक द रुपे कार्ड इनिशिएटिव, ठीक है। और न्यू रनवे एट हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो हम जो है रनवे भी बना रहे हैं वहाँ पे, रुपे कार्ड का भी हमारा इनिशिएटिव है इन मालदीव्स। कम्युनिटी इंटरेक्शन है, प्रेसिडेंट मुर्जू एड्रेस्ड concerns of the Maldivian community and reaffirmed his administration's commitment to their welfare। तो हमारे बहुत लेवल पे उनके साथ जो है कमिटमेंट्स जो है विथ मालदीव्स, बट थोड़ा सा रिलेशनशिप ऑब्वियसली स्ट्रेन हुआ था एंड वी आर ट्राइंग टू रीबिल्ड ऑन दैट रिलेशनशिप, ठीक है। So they also know that we are a very reliable partner and China is not so reliable partner, so they want our help also। So यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंडो मालदीवियन रिलेशनशिप को अच्छे से समझें, ठीक है। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.